بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برآمد میں اسلامی بینکوں کا کردار۔ برآمد کے سلسلے میں بینک کے دو کردار ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایکسپورٹر کا بینک یعنی نیگوشیٹنگ بینک ہونے کی حیثیت سے کئی خدمات انجام دیتا ہے، مثلا مال روانہ کرنے کے کاغذات یعنی بل آف لیڈنگ بھیجتا ہے، امپورٹر سے رقم وصول کرتا ہے اور ان خدمات کی اجرت وصول کرتا ہے وغیرہ۔ اس میں شرعاً کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ یہ تمام افعال ایسے ہیں جن کی اجرت لینا جائز ہے۔ بینک کا دوسرا کردار یہ ہے کہ برآمد کنندہ یعنی ایکسپورٹر کو مال خریدنے یا تیار کرانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سرمایہ بینک فراہم کرتے ہیں۔ اس کو تمویل الصادرات یعنی ایکسپورٹ فائنانسنگ کہتے ہیں۔ تمویل الصادرات کی دو قسمیں ہیں، ان دونوں کو سمجھ کر دونوں کا شرعی طریقہ کار الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ تمویل کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی کے پاس باہر سے آرڈر ہے مگر مال خریدنے اور تیار کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے بینک تمویل کرتا ہے، اس کو تمویل قبل الشحن یعنی پری شپمنٹ فائنانسنگ کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایکسپورٹر کے مال خرید کر تیار کر کے بھیج دیا ہے مگر رقم آنے میں کچھ دیر لگے گی، اتنی مدت کے لیے وہ چاہتا ہے کہ بینک سے اتنی رقم مل جائے، اس کو تمویل بعد الشحن یعنی پوسٹ شپمنٹ فائنانسنگ کہتے ہیں۔ سودی نظام میں تو ان دونوں صورتوں میں سود پر قرضہ دے دیا جاتا ہے۔ ان دونوں قسم کی تمویل کا شرعی طریقہ کیا ہو، یہاں اس پر گفتگو کرنی ہے۔ پہلی قسم یعنی تمویل قبل الشحن کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، بہت سے اسلامی بینکوں میں یہ صورت چل رہی ہے کہ بینک ایکسپورٹر سے وہ مال خود خرید کر اس کو قیمت ادا کر دیتا ہے۔ ایکسپورٹر نے اپنے امپورٹر سے جو قیمت طے کی ہوتی ہے، بینک اس سے کم قیمت پر مال ایکسپورٹر سے خریدتا ہے اور ایکسپورٹر نے جو قیمت غیر ملکی خریدار سے طے کر رکھی ہے اس پر اپنی طرف سے مال اس کو روانہ کرتا ہے، جس سے بینک کو نفع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طریقے کار میں کئی قباحت ہے، وہ یہ کہ اس طریقے میں بینک کے شرعی تقاضے عموماً پورے نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا اب ایکسپورٹر بینک کو قرار دینا چاہیے مگر بینک کے اس مال کو خرید لینے کے بعد بھی عمیل یعنی جو شخص بینک سے سرمایہ لینے آیا تھا کو ہی ایکسپورٹر سمجھا جاتا ہے اور ایکسپورٹ کی سرکاری مراعات بھی اسی کو ملتی ہے۔ دوسرے ملک میں مال کو منگوانے والا یعنی امپورٹر بھی بینک کو بائیں نہیں سمجھتا، عامل ہی کو سمجھتا ہے، حتیٰ کہ مال میں عیب وغیرہ کا دعویٰ بھی عموماً عامل پر ہی ہوتا ہے، بینک پر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بے محض ایک مصنوعی کارروائی ہے۔ اگر قباحتوں کو دور کر کے واقعتاً بے حقیقت پائی جائے تو یہ طریقہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ضمنی وضاحت ضروری ہے کہ موجودہ نظام میں بھی مال روانہ کرنے کے کاغذات یعنی بل آف لیڈنگ وغیرہ بینک کے نام پر ہی بنتے ہیں، اس پر ٹو دی آرڈر آف دی بینک لکھا ہوا ہوتا ہے اور رقم اور کاغذات کی وصولی بھی بینک ہی کرتا ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ حقوق کے عقد بینک کی طرف راجع ہو گئے، اس لیے کہ بینک کا نام اس لیے نہیں لکھا جاتا ہے کہ وہ حقیقتاً عاقد ہے، بلکہ بینک کا نام صرف بطور وثیقے کے لکھا جاتا ہے۔ جب تک بینک اور عامل کے معاملہ صاف نہ ہوں گے بینک کاغذات نہیں دے گا۔ درآمد اور برآمد امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے بینک۔ درآمد میں جو بینک کی ضرورت پڑی اس کو کل انہوں نے ذکر کیا۔ برآمدات میں درآمد تو ملک میں آنا ہے اور برآمد ہے آپ کو مال یہاں سے دوسری جگہ بھیجنا ہے، اس کو نکاس کہا جاتا ہے۔ تو برآمدات کے اندر بھی بینک دو کام کرتی ہے، ایک تو یہ کہ اس کو ایکسپورٹر کا بینک ہونا، آپ نے اپنا مال روانہ کیا یا سامنے والی پارٹی نے اپنا مال روانہ کیا تو وہ بینک کو اپنی طرف سے ایسی کھلوا کر بینک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اب بینک ان کی چیز کو یہاں تک پہنچا رہا ہے، اس سلسلے میں وہ رقم وصول کرتا ہے اور اپنی طرف سے وہ رقم ہمیں پہنچا رہا ہے، جس نے بھی مال اس کے پاس سے منگوایا ہے، انہوں نے بھی بنوایا ہے مال آگر، تو ان میں شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ظاہری طور پر اصولی طور پر بینک جو عمل کرتا ہے وہ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک قسم کا عملی شکل میں ایک اقدام کر رہا ہے، اس لیے چاہیے۔ لیکن پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے بینک صرف اتنا کام کرے، تو یہ کام تو جیسے ہم کتب خانے سے کتابیں منگواتے ہیں، یہاں ملتی ٹرانسپورٹ والے کے پاس جاتی ہے، اس لیے ان کو ہم پر اطمینان ہے کہ پیسے کبھی بھی دیں گے، یا کبھی کبھار پوسٹ میں جاتی ہے یا بینک میں جاتی ہے، تو بینک سے آپ وہ ملتی لینے جائیں گے تو بینک سب سے پہلے جتنی کتاب کی قیمت ہے وہ وصول نہیں ہوگی، وہاں تک آپ کو ملتی نہیں ملے گی۔ جب یہ ملتی بینک سے نہیں ملے گی تو وہ ملتی وہاں ٹرانسپورٹ والے کے پاس نہیں پہنچتی ہے، اس لیے وہ بھی ہمیں وہ اپنا مال جلدی دیتا، ملتی لے کے آؤ۔ تو اب تعلقات ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ملتی اس کو دے دی جاتی ہے اور کتابیں وہاں سے آپ لے آتی ہیں۔ اس میں جو ٹرانسپورٹ والے نے کام کیا کہ ہمارے پاس سے یعنی وہاں سے مال جو آیا وہ اس نے اپنے آفس تک پہنچایا، اب کبھی ڈیلیوری مدرسے تک ہوتی ہے، کبھی اس کی آفس کے عموماً اس کی آفس کی ہوتی ہے۔ اب یہ ٹرانسپورٹیشن میں ہمارے لیے جو کچھ کیا ٹرانسپورٹ والے نے، یہ ایک مزدوری تھی اس کی دوست ہے۔ یہی حال بینک کا ہے، بینک وہ رقم ہمیں بینک میں جمع کرواتے ہیں تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ میری رقم بینک میں پہنچ گئی، جیسے آپ رقم جمع کروائیں گے بینک آپ کو ملتی بھی دے دے گا اور اب ٹرانسپورٹ سے آپ لے آئیں گے کتابیں۔ یہ اس قسم کے جو کام کاج کرتی ہے بینک،
उसमें हम चार्ज देते हैं राशि उठाई है मदरसे वगैरह का और इस्लामी निज़ाम में, तो ये तो वो चीज़ें हैं जिसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन चूंकि बैंकें दूसरा भी एक काम करती है, उसकी बैंक ने उसको वो माल तैयार करने के लिए रकम दी है और अब उसके बाद वो माल हम तक पहुंच रहा है, तो बरामद करने वाला भेजने वाला तो दूसरा कोई है कि आप अपना माल भेज रहे हैं और बैंक आपके लिए बरामद के एतबार से वो माल तैयार करने में आपको रकम देती है और उसके अंदर आप और बैंक शरीक होते हैं। तो ये माल पहले ऑर्डर किसी और जगह से आया है, इसने आपसे मामला किया कि हमें ये चीज़ चाहिए और आप अपनी तरफ से वो माल उसको रवाना कर रहे हैं, तो आप बाय हैं और वो मुश्तरी है। अब जब आप बैंक के पास गए, बैंक आपको ये कह रहा है कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं लेंगे हम ये रकम, ये कर्ज जो आप मांग रहे हैं इसके लिए आप हमें अपने साथ शरीक करें। इस्लामी बैंक होगा तो वही करता है, ये बैंकें तो सूद वसूल कर लेती है, टैक्स चार्ज वसूल कर लेती है या सूद पर रकम देकर उसका सूद भी ले लेती है, लेकिन इस्लामी बैंक होगी तो वो सूद ले नहीं सकती। तो अब वो उसके साथ कारोबार किस तरीके से करे? तो मौलाना ने उसको फरमाया कि दो शक्लें हैं। एक ये कि किसी शख्स के पास बाहर से आर्डर आया है मगर माल खरीद कर तैयार करने के लिए सरमाए की ज़रूरत है, तो आप बैंक के पास गए, बैंक ने तमवील की और बैंक ने आपसे कहा कि हम रकम देते हैं लेकिन हम और आप शरीक हो जाए। अब आपको उस कंपनी उस पार्टी को जो माल बेचना है, मिसाल के तौर पर आपको उसको माल बेचना है, यानी मजमूई तौर पर जो कीमत उसकी बनती है आपके लिए, जिसका जो बिल बनाया आपने वो 1.5 लाख का बनाया है। बैंक आपसे बात करेगा कि 1.5 लाख का बिल तो उसके लिए बनाओ लेकिन हमें तो 1,20,000 में ही दो, हम तुमसे खरीद रहे हैं लेकिन कैश हम तुम्हें दे रहे हैं। इस तरीके से बैंक उनके पास से एक चीज को बैंक उसको देता है और अब जब बिल आएगा तो 1.5 लाख का आएगा तो बैंक को 30,000 का फायदा हो जाएगा। अब ये बैंक ने इस तरीके से मामला तो किया कि हम तुम्हारे पास से ये माल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और फिर उसको दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो बैंक है ही नहीं बीच में। इसने तो आपके साथ मामला किया है, इसलिए आप पाए हुए माल बेचने वाले और वो शख्स मुश्तरी। मौलाना फरमाते हैं इसलिए रकम आने में कुछ देर लगेगी, इतनी देर वो चाहता है कि बैंक से इतनी रकम मिल जाए। ये एक और शक्ल भी होती है, माल तो उसी ने तैयार करके भेज दिया है, सीधे देखो। अब ये जो माल उसने वहाँ पहुँचाया, आपने पहुँचाया, मसलन बाय हम हैं तो हमने वो माल पहुँचाया उसको, लेकिन माल तैयार करने के लिए रकम की ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए बैंक के पास गई, बैंक ने वो रकम दी। या आपने माल तैयार कर लिया है, दो चीज़ें होती है, एक तो ये कि माल तैयार करने से पहले ही बैंक में गए और बैंक से मामला कर रहे हैं तो आप उसके साथ बैंक मामला कर रहे हैं। एक शक्ल ये बनती है कि आपने उसका माल तैयार कर लिया लेकिन वो माल आपको 2 महीने के बाद उसकी रकम उससे मिलने वाली है। 2 महीने में आपको कारोबार करने के लिए कैश की ज़रूरत है तो आपके पास नहीं है, आप यही कागज़ लेकर बैंक के पास गए और आपने बैंक से कहा कि देखो मैंने 1.5 लाख रुपये नुकसान से मामला किया है लेकिन 1.5 लाख रुपया मुझे बाद में मिलने वाला है, अभी नहीं मिलने वाला है, तो आप ये कागज़ मेरे पास से ले लीजिए और जब रकम आए तो बैंक में आने वाली है, आप अपने नाम पर कर दीजिए और मुझे 1,40,000 दे दीजिए। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपया आप मुझे कम दीजिए और 1,40,000 आप मुझे दे दीजिए। ये 10,000 रुपया किसके बचे? ये गुफ्तगू बाद में होगी। पहली मौलाना ने पहली किस्म को शुरू किया तमवील क़ब्ल शर्त। तमवील क़ब्ल शर्त का मतलब ये है कि अभी आपके पास माल तैयार नहीं हुआ, आपने किसी वक्त बैंक के पास से रकम ली है तो क़ब्ल शर्त है। और दूसरा बाद वाला, ये पहले पर गुफ्तगू हो रही है कि बहुत सी इस्लामी बैंकों में मौलाना फरमा रहे हैं कि जिन्होंने इस्लामी बैंक के उन्वान से अपनी बैंकें कायम की वो ये करते हैं कि ये माल खुद खरीद कर उसकी कीमत अदा कर देते हैं। मान लिया थोड़ी देर के लिए उससे खरीदा, इतना तो सही हुआ आपने उस, लेकिन अब आप बेच रहे हैं किसको? जो ऑर्डर जो शर्तें उसने आपसे लगाई है माल की मंगवाने वाले, वो सारी शर्तें बैंक ने तो आपके साथ कोई मुआहदा नहीं किया है, अब आपने उसको दे दिया बैंक को माल और बैंक ने वो माल पहुंचा दिया, रकम आई बैंक ने उसको। अब अगर माल में कुछ गड़बड़ आई, आपने माल तैयार सही करके नहीं दिया है तो अब इसका कौन जिम्मेदार होना चाहिए? मसले के एतबार से बैंक ने आपसे खरीदा है तो खरीद के वो उसको आपके साथ मामला करना चाहिए कि हम माल देखेंगे उसके बाद ये, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया अब ये इस किस्म का जो मसला है। एक तो मौलाना ने बुनियादी बात करी कि पाए तो आप हो नहीं, पाए तो वो है उसके पास से माल खरीदा है इन्होंने, इसलिए शरई नुक्ते नज़र से आप पाए नहीं है, वो मुश्तरी आपका नहीं है, वो है दूसरे का मुश्तरी। और कानूनी तौर पर कागजात में जितना कुछ भी लिखा जाता है वो सब किसकी तरफ मंसूब करके लिखा जाता है?
अब यहाँ दो बातें मेरी समझ में है। इस्लामी नुक्ते नजर से तो कोई किसी से कोई माल खरीदे और खरीद कर दूसरे को बेचे, एक तो ये शर्त, और एक ये है कि आपसे माल किसी एक ने मंगवाया है, आपने वो माल तैयार करके दूसरे को बेच दिया और वही माल दूसरा उसको वहाँ, अगर मुश्तरी इससे राजी है तो भाई मुश्तरी बदल गए, अब ये मुश्तरी उससे राजी है कि तुमसे माल लेंगे इससे माल लें। जैसे आप अमूमन ये करते हैं कि किसी बड़े कंपनी से आप ऑर्डर करते हैं तो वो कंपनी वो माल तैयार नहीं करती है, बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है वो किसी और से माल तैयार करवा और आपको कहते हैं कि माल आपका मिल जाएगा, वो वहाँ से माल बेचते भी नहीं, उसी को कहते हैं कि तुम क्या करो, लेकिन वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि कहीं उसकी निशानी बाकी रखे, वरना आप सीधा उससे मामला कर लो। तो इसलिए बैंक आपको यही कहती है कि माल आपको मिल जाएगा, कहीं भूल भाल से कहीं कुछ रह गया, या बेचने वाला भी होशियार होता है, माल तैयार करने वाला भी, कि हम बैंक के वास्ते से दे रहे हैं तो बैंक हम थोड़ा नफा कम दे रही है, बेहतर ये है कि हम किससे मामला करें, सीधा उससे मामला करें, या ये कि कम से कम उसको बता दें कि माल यहाँ से रवाना हुआ है, आप कभी हमसे भी मांग सकते हैं, अगर से वो नहीं लेगा, इसलिए कि कैश ज़रूरत है तो बैंक दे रहा है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो सीधा मंगवाता है, लेकिन बैंक के वास्ते से मंगवाना पड़ता है अमूमी तौर पर। आया इस्लामी बैंकें इस तरह कर सकती है कि बीच में मुश्तरी बनकर दूसरे के लिए बाय बन जाए? मौलाना फरमाते हैं कि दो बातें हैं, एक तो ये कि अगर वो राजी हो गए सामने वाला मुश्तरी, या आमतन आजकल यही चलता है, आप देते हैं किसी को मामला, उसका इतना एतमाद होता है कि माल में गड़बड़ हुई तो वो जिम्मेदार हो। ये अलग बात है कि वो आपके सामने कहेगा कि हमने पुराने से माल तैयार किया है, किसी और से तैयार करवाया, इसने ऐसा किया, आप कहोगे कि इसके जिम्मेदार आप, इसलिए कि सौदा आपने हमसे किया है, बैंक वाले को सामने वाला ये कहेगा। इसलिए इस नुक्ते नज़र से मौलाना फरमा रहे हैं, मौलाना ने इस वक्त जुजिए को नहीं छेड़ा, लेकिन आम मतन कारोबार में जब सवाल आते हैं तो इस तरह के भी आते हैं सामने वाले की तरफ से। अब बैंक ये कहकर छूट जाए तो नहीं चलेगा, एक साहब से मस्जिद के कारपेट खुलवाए, एक और जगह के लिए भी मस्जिद के लिए विसनगर के हजरात थे, उन्होंने उसको 2 महीने 3 महीने हो गए या भरूसी से ऑर्डर दिया था, वही मरकज है भरूसी अभी इस वक्त सबका। तो इसने ये कहा रमजान में जब हम लोग गए उसके बाद मौलाना जिसके पास से माल मंगवाया तुर्की से, लेकिन था हिंदुस्तान का, यहाँ का ताजी माल मंगवाने वाला, ये तो बीच में वो आया है, कंटेनर के कंटेनर वो मंगवाता है, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान सब जगह सप्लाई करता है, इसके लिए तो बेचारे के लिए एक मस्जिद के लिए उसको चाहिए या 2-4 मस्जिदों के लिए, तो कंटेनर मंगवाने में बाकी कहाँ जाए, और इतनी लंबी चौड़ी रकम कहाँ से अदा करने की, कंटेनर समझ रहे हैं बहुत बड़े। तो अब ये है कि ये मसला आता है, हवाई जहाज़ से, पानी के जहाज़ से अमूमन ये चीज़ें आती हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, चाइना से जो लोग माल लेते हैं वो एक आदमी नहीं लेता है, चंद लोग मिलकर ही, हमारे यहाँ से लोग अफ्रीका में गए वहाँ से चाइना से माल लाते हैं, या हिंदुस्तान से भी लोग, तो चंद लोग मिलकर कंटेनर कितना बड़ा होता है उसका खर्चा इनको कम पड़ता है, और वहाँ से माल भी इस तरह आता है। तो अब ये इस तरह के मसाइल आए, इन्होंने यही कहा कि माल अभी सारा रख दिया था, हमारा माल थोड़ा बाद में तैयार हुआ और कंटेनर निकल चुका था, वल्लाह आलम। अब उसके बाद उसने एक बात रखी कि क्या मैं आपको दूसरी कंपनी का मेरे पास माल तैयार है दूँ, विसनगर वाले भी सब ताजिर लोग, उन्होंने कहा नहीं तमारू 11,000 में एक ले लूँगा, माल बना ही नहीं था। बाद में जब मैंने उसको कहा कि ये तो तुम बोले हो तो सस्ते के झूठ है, तो उसने कबूल कर लिया कि मौलाना मैंने उनका ऑर्डर दिया था, लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ, तुर्की में ऑर्डर था, तुर्की के अफसर बनते, लेकिन मालूम, लेकिन उनसे जो बात करवाई वो दिल्ली से बात करवाई। मैंने कहा कि आपको तो तुर्की वाले से बात करवानी है, कहा नहीं मैंने इसको ऑर्डर दिया, मैंने चलो ऑर्डर उसको दिया है। अब उसने भी कह दिया कि क्या कहूँ, माल में थोड़ी ताख़ीर हुई नहीं, मेरे कंज्यूमर की दूसरी चीज़ें हैं, उनकी लोगों ने जल्दी की, इसलिए मैंने माल जल्दी में रवाना, वल्लाह आलम। लेकिन इसने तो एक शिक नहीं रखी, वो ऐसे ही करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा, तो वो होशियार लोग के कहा कि नहीं हमको आपको जो ऑर्डर दिया है जिस माल का वही चाहिए। फिर बाद में आ गया, 2 महीने के बाद ये आया सही। तो ये इस तरीके की बीच वाला। अब ये कहते कि उसने ये किया है तो हमने तो आपसे मामला किया है, हम उसको नहीं जानते, उसको जानते तो सीधे इससे राब्ते नहीं करते कि तुम्हारे, लेकिन ये कि हम भी एक मस्जिद के लिए खरीद रहे हैं तो राब्ता हमारा भी बीच वाले से ही करना पड़ता है। तो ये इस तरह इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर इस तरह की पेचीदगियाँ जब आती है तो बाय और मुश्तरी अगर मुतायन नहीं होते हैं तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर इसको जायज़ कर दे तो ये जिसने माल तैयार करके बेचा और कीमत ले ली उसने बैंक के हिसाब से, या उसने बैंक ने उससे खरीद लिया कबल सहने वाला है तो भी,
تو बैंक ने उससे खरीद लिया, अब माल में कुछ गड़बड़ हुई तो आप किसको रखेंगे? आप तो उसी को कहेंगे, वो कहेगा मैंने तो ये बेच दिया है बैंक को। तो अब ये बैंक जिम्मेदार, आपके में बैंक के कोई ताल्लुकात नहीं। इस तरीके से बिल्डर लॉबी अपनी जमीन या अपना मकान आपको बेचती है और वो उनके नाम पे नहीं होता है, वो किसी और ही के नाम पर होता है जिसकी जमीन होती है, या बीच में किसी और के नाम पर कर देते हैं टैक्स से भी बचने के लिए। और इस तरीके के हुकूमत के जो स्टैम्प ड्यूटी अदा करनी पड़ती है, 1 लाख में 8,000 रुपये 7,000 रुपये अदा करनी है, तो लाखों का इनका तो प्लॉट हो और जमीन पूरे पूरे बोल हो, तो ऐसे के अंदर वो आपके साथ यही मामला करते हैं। अब जब आप कहोगे हमारे नाम पे कर दो, तो 2 शक्लें बनती। एक तो ये कि वो खुद कर देते हैं, छोटे ताजिर लोग होते हैं, छोटे बिल्डर, वो तो बेचारे कमाने की लालच में वो खुद ही उनके ऑफिसरों से ताल्लुक और वो उनको ही डांटते हैं, हमें डांटे भी ऑफिस वाले, इसलिए कि वहाँ से दल्ला तसलसल से आ रहा है, आप तो आज आए हैं कल उनके साथ उनके पास से तसलसल से आ रहा है, तो जल्दी उनका काम हो भी जाता है। अजीब अजीब चीज़ें ऐसे ऐसे कागजात बन जाते हैं कि तस्वुर भी नहीं। लेकिन अगर आपने खरीदा उसके पास, अब जब दस्तावेज करने आए, क्योंकि दस्तावेज तो आप मकान तामीर करने वाला आपके पास से 3 अलग अलग हफ्तों में रकम लेता है, क्योंकि इतना हुआ तो आपसे इतना हुआ, स्लेट हो गया तो इतने, फिर पूरा मकान प्रतिशत उसका देना है, आपको चाबी देनी है, तो उसको फिर ये पूरी रकम अदा कर दो और उसके बाद ये इस मुद्दत के अंदर आप तो इसमें खुश है कि ये जमीन मुझे मेरी है और ये मकान मेरा बन रहा है, और जिससे ले रहे हैं उसका होगा, लेकिन उसका होता नहीं किसी चीज़ से। अब इन दोनों के दरमियान कोई गड़बड़ हो गई और वो तीसरी पार्टी कहती है तुम सही नहीं करो, तब आपका तो मकान क्या हो गया, बना बनाया आपके कब्जे में है, लेकिन आपकी बिल कम है, आपकी बिल कम है लेकिन कब्जे में नहीं, और बिल कभी नहीं कही जाएगी जब तक आपके नाम पर न हो। तो ये इस तरह की पेचीदगियाँ बैंकों में भी आती है, आम चीज़ों में भी इस तरह आती है। इसलिए पहले से इसको भी जब कोई इस तरह के प्लॉट वगैरह की चीज़ें खरीदी जाए तो उनको तो यही बताया गया कि मसूलियत न हो, साफ साफ बातें हो। वो कहते हैं कि तुम्हें फिक्र न करो, तो हमारा हमें बड़े पहुँची बड़ी पहुँच नहीं बढ़ते हैं, या कोई गड़बड़ आ गई है, इस तरह के मसाइल होते हैं, इसलिए इसको भी समझना है। नंबर 2 तो ये मसला है। दूसरा, शरई नुक्ते नज़र से 2 आदमी आपस में मामला करते हैं तो बिन वजीर जवाज की तो गुंजाइश है, बैंक आपसे खरीद रहा है, लेकिन ये माल आपने बैंक के लिए नहीं बनाया है, आपने तो तीसरी पार्टी से मामला किया है, तो अमानत में खयानत की हुई, अहद से मुकर गया और वक़ूफ़ भी लाज़िम, आपने अहद उससे किया है। नंबर 2, इस्तेमाल की बेहतर सूरत यह है कि बैंक और आमिल के दरमियान शिरकत या मुजारबा का मुआहदा। मौलाना फरमाने कि कुछ लोगों ने ये समझा कि चूंकि बैंक के नाम की कुछ कागजात बनते हैं तो बैंक मालिक हो गई, हालांकि ऐसा नहीं होता है। मालिक बैंक नहीं बनती है, बैंक तो इस किस्म की जितनी चीज़ों में वास्ते की जो शक्लें बनती है वो सब अब उसमें बैंक के नाम आया। आपने माल यहाँ से तैयार करके बेचा तो आप बैंक को बेचेंगे या आप बैंक से रब्ता करेंगे, बैंक उसका जो होगा वहाँ तक आपको कहेंगे कि माल वहाँ पुरानी जगह पहुँचा दो, वहाँ से माल जो होगा उसमें बैंक का नाम, जैसे ये बिल ऑफ लीडिंग में भी किसका नाम होगा, बैंक का। इसलिए कि आप तो एक ताजिर है, बैंक ने तो बहुत से ताजिरों से मामला किया है, तो ये पूरा कंटेनर तो बहुत सारे लोगों का एक साथ मजमुआ है, अकेला आपका नहीं है, इसलिए आपका नाम कैसे हो सकता है। अंदर में फिर आपका नाम होगा, आपका जो कंटेनर होगा, आपका जो माल होगा वो, लेकिन ऊपर तो बैंक ही से जा रहा है, कागजात भी सारे बैंक के नाम के बन रहे हैं। तो अब कुछ लोग ये कहेंगे देखो बैंक ने इससे खरीदा, ये दलील है, ये दलील नहीं है, इसने बैंक ने इससे खरीदा, ये बैंक का और इनका मामला है। सामने वाला आदमी तो यही समझ रहा है और ये कागजात में बैंक का नाम होना कोई उसके बाहर मुश्तरी होने की दलील नहीं। अगर अमील भी कुछ सरमाया लगा रहा हो तो शिरकत होगी, और अगर वो अपना सरमाया न लगा रहा हो तो मुजारबा का अक़्द होगा। अमील बैंक से सरमाया लेकर माल खरीदेगा या तैयार करेगा, फिर बाहर भेजेगा और जो नफ़ा होगा वो तकसीम हो जाएगा। इस सूरत में मुशारका या मुजारबा आसान भी है, इसलिए कि अमील का दूसरा मुल्क के खरीदार यानी इम्पोर्टर से मुआहदा हो चुका है और कीमत भी तय हो चुकी है। इधर माल की तैयारी पर लागत का भी अंदाजा है, तो इस बात का बसौलत अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले के नतीजे में कितना नफ़ा होगा। अलबत्ता इसमें एक मुश्किल हो सकती है कि अमील ने माल मतलूबा सिफत के खिलाफ बेच दिया तो दूसरी तरफ माल वसूल नहीं किया जाएगा और अगर उसमें बैंक का भी नुकसान होगा। इसका हल ये हो सकता है कि मुशारका या मुजारबा के मुआहदे में बैंक ये शर्त लगा दे कि माल मतलूबा सिफत के मुताबिक बेचना होगा। अब भी अगर उसने मतलूबा सिफत के खिलाफ माल भेजा तो उसका जिम्मेदार वो अमील होगा, बैंक उसका जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए कि शर्त की मुखालफत की वजह से ये अमील की तरफ से तअद्दी है और तअद्दी की सूरत में शरीक या मुजारिब को जामिन बनाया जा सकता है। दो मसले हुए, पहली शक्ल जो मौलाना ने अदम जवाज की बतलाई, उसमें बराह रास्त बैंक खरीद लेता है और वो माल बैंक दूसरे को पहुंचा, वह मुश्तरी बन जाता है।
दूसरी मिसाल दी कि बैंक ऐसा क्यों करें, जब आप बैंक के पास गए और ये कहा कि मुझे इतने रुपये की ज़रूरत है, कब्ल शहर है, आपने कहा तो बैंक ये कहेगी कि हम आपके साथ मुशारका कर रहे हैं, आधे आधे शरीक हो रहे हैं, काम भी हम करेंगे, लेकिन बैंक हुकूमत मुशारका नहीं करता है, मुशारबा इनका काम करता है। तो बैंक ये कहेगी कि आप माल तैयार करो, कच्चे माल की रकम जो ज़रूरत है वो हम आपके साथ बतौर मुशारबा के लिए कि इस माल में जो नफ़ा होगा इसकी इतने फीसद हमारा, इतने फीसद तुम्हारा। ये बहुत आसान शक्ल है, इस्लामी बैंक ये कर सकते हैं। सामने वाला जो कुछ भी माल तैयार करेगा उसमें कुछ नफ़ा उसका और कुछ नफ़ा आपका। जैसे आम वतन आप किसी के पास कर्ज लेने गए, उसने कहा कि भाई किसके लिए चाहे, अगर तजारत के लिए तो भाई ये करो कि मैं भी तुम्हारे साथ शरीक हो जाऊँ, इस माल में जो नफ़ा हो, दूसरे सारे माल अलग, थोड़ी दुकान लगी है उसकी, तो आपने तो इस माल के लिए, इस सामान के लिए पैसे दिए, या वो आपके लिए सारे माल में तैयार हो जाए। कभी कभार गले आ गए होते हैं ताजीर, किसान पहरा भी देना तैयार हो, माल बिकता न हो, दुकान में माल सही तरीके से न हो, या इस तरह या बेचारा परेशान है, मफरूज है वर्षों का, तो ऐसे मौके पर वो आपके साथ किसी भी तरीके से तैयार होता है। लेकिन वहाँ पर ही हदीस आती है, ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिय्यिबि नफ्सिही, उसकी खुशगवारी के साथ हो, आप मजबूत समझ रहे हैं उसको, हर चार सिमत से तो आप फ़ायदा उठाना जाओ, लेकिन फी नफ्सिही इजाज़त जायज़ है। ये तक़वा की बुनियाद के ऊपर ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन, ये दूसरी चीज़ है। लेकिन अगर आप समझ कर भी ये कर रहे हैं तब तो हदीस का मिसलाक आप बन रहे हैं, अगर कर रहे हैं। अलबत्ता इसमें एक मुश्किल है कि अमील ने माल मतलूबा से पाते, मौलाना फरमाने कि इसमें ये होता है कि कारोबार करने वाले ने तो उसके साथ मामला किया, बैंक ने उसके साथ मुजारबा का मामला करके बैंक ने माल की रकम दी, माल तैयार हुआ, अब उसने माल उस तरह का नहीं बनाया है जिस तरह होना चाहिए था, तो माल वापस आएगा। तो बैंक ने तो रुपये भी दिए और ऊपर से ये रुपये फंस भी गए, उसके मसला गड़बड़ हो गया। तो बैंक इसके साथ रब्बुल है, जिसको बैंक रुपया दे रही है, बैंक रब्बुल माल है, मुजारिक को ये कहेगी कि देखो जो ऑर्डर आया है उसके मुताबिक माल होगा तो ही चलेगा, इसके मुताबिक माल नहीं होगा तो हमारा, लेकिन अब उसको फ़ायदा किसको हो रहा है, बैंक ने तो रकम दे दी है, पैसा दे दिया है, अब उसने उस मतलूबा सिफत के मुताबिक अगर नहीं किया तो हम केस करेंगे तुम्हारे खिलाफ, कोर्ट में जाएंगे और पूरी रकम अदा करने की तुम जिम्मेदार होंगे। ये उसके पास एग्रीमेंट लिख हुआ है, आजकल तो यही कसरत से चलता है। लेकिन ये कभी कभार कोई तारीफ कर देता है, जिसको मार्केट में रहना है वो अमानतदारी से रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि यूरोप में अमानतदारी आई है, मुसलमान में अमानतदारी नहीं, जबकि आखिरत के अज़ाब का तसव्वुर तो मोमिन को होना चाहिए, उनको तो है ही, फिर भी दुनिया में अमन है और ये अच्छी तरह कारोबार कर रहे हैं। तो ये कारोबारी दुनिया को बहाल रखने के लिए किया, अल्लाह पाक का तसव्वुर नहीं है। इसलिए जहाँ किसी मौके पर इनको ये नज़र आएगा कि यहाँ हमारी कोई पकड़ हो नहीं सकती है, तो ऐसे मौके पर बकरी मार भी देंगे। अमरीका में कैमरे चलते हैं इसलिए लोग गुनाह नहीं करते हैं, जैसे लाइट गई, बिजली गई, मौलाना पति साहब ने लिखा है लॉस एंजलिस जैसे दूसरे नंबर के बड़े शहर में, और अचानक लूटमार हो गई, सब लूट लिया लोगों ने। ये अलग बात है कि ऐसे भी शरीफ लोग थे कि माँ ने अपने बेटे के खिलाफ केस किया कि मेरा बेटा घर में गलत मांग लिए चोरी का लेके आया, अभी 2-3 साल पहले का वाक़या है। ऐसा अमरीका है, हिंदुस्तान में लोग तो बचाने की कोशिश की, हाँ घर में उसको रोकेंगे कि तो आके लाए हो, लेकिन अब उसके बाद कौन केस करे उसके खिलाफ। ये चीज़ ये भी उसी का एक हिस्सा है कि इन्होंने ज़िंदगी गुजारने का ये तरीका, यानी आखिरत के तस्वुर के बगैर वो गुनाहों से क्यों रुक रहे हैं, जबकि कुरान तो वकील आखिरत ये फिल्म के ज़िंदगी में हमारे मुफस्सिरीन यही लिखते हैं कि आखिरत का तस्वुर ही था जो तामीदिया को और माइज़ असलमी को ले आया। तो अब ये तस्वुर इस बुनियाद पर है, तो इन्होंने माली अखलाकियात, तिजारती अखलाकियात को मुतय्यन की और उस पर वो पाबंदी। उसके पीछे मंशा ये है कि अगर ये अखलाक हमने छोड़े तो दुनिया पर भरोसा नहीं करेगी। एक मजमून हमने लिखा है गुजराती के अंदर, गुजराती किताब में भी लिखा, पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे लिखने वाले वो कह रहे कि मैं कसूर अमरा गया और वहाँ सींग का फोटो है, शेर का, और उसके अंदर से पानी निकल रहा है। ये खड़े थे, ये तो उन्होंने सीरत के उन्वान से मजमून लिखना था, तो एक किस्म का लिखने वाले तो ऐसे होते हैं, वहाँ कुछ वाक़या पेश आया हो कि ना आया हो। वो कह रहे हैं कि मैं देख रहा था कि एक यूरोपीय औरत मेरे पास आई और आकर ये कहा कि इस्लाम में तस्वीर की ममानात है कि ये तुम्हारे बादशाहों ने शेर की तस्वीर क्यों बनाई, और ये जो पानी निकल रहा है उनके मुँह से, ये कहाँ से जायज़ हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो पढ़ने लिखने वाली है तो
शाही कौमी होता है, ये पत्रकारों का साहबियों का मसला तो बैठ कर फिर उसने लंबा बयान दिया। तुम्हारे नबी ने कहा था कि कारोबार इस तरह किया जाए, तुम नहीं कर रहे हो। तुम्हारे नबी ने गुनाह कहा, उन अखलाकियात, आमालियात, सारी चीज़ों में जहाँ मुसलमान गफले करता है, बदमाशियाँ करता है, वो सारी गिनवाई। तो उसने गिनवाई कि लिखने वाले ने गिनवाई, लेकिन सीरत पर उन्होंने एक मजमून बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसमें वो औरत ये कह रही कि तुम्हारे नबी ने हमारे जाने की बात की थी, तुम लोग हमारे मुल्कों में आ रहे हो, तुम्हारे मुल्कों में कोई नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान से दौड़ रहे हैं, लतक बतक के मर के भी कहीं अमरीका मिल जाए, जन्नत मिल जाए, तो ये इस तरीके से वहाँ से यहाँ नहीं आते। उन्होंने तो उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए उनको तो मजमून मुसलमानों को भी समझाने के लिए लिखना था। ताकि जवाब उसका है कि तुम पहले यहाँ आए और आकर इतना ले गए हैं कि वही अभी वहाँ पड़ा हुआ है। तो मंदी रहमतुल्लाह अलैह की नक्शे हयात उसमें देख लीजिए अंग्रेज ने क्या क्या यहाँ से लिया है, किस तरह खींच कर ले गए है। इससे हम इत्मीनान न करें। हमारी जो बदमाशियाँ हैं वो तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान दोनों मुल्क है, पाकिस्तान को तिजारत करते नहीं आता है, इंडिया को आता है, इसलिए अरब मुल्कों में वो घुसा हुआ है। अब दुनिया में कोई क्या करेगा, आप भी मार्केट में जाएंगे ना, कोई हिंदू कमा के आपको कम भाव में देगा तो दुकान आप उसी की दुकान पे जाएंगे। मुसलमान ज़्यादा दे रहा है तो आप नहीं जाएंगे, रिक्शा में भी उसी की बैठेंगे। तो इंटरनेशनल कारोबार में भी यही हो रहा है। आप अमानतदारी से मामला कर रहे हैं तो लोग आपके पास आएंगे। और अगर आप इस तरह जल्दी सरसों मालिश करना उसको बोला जाता है, आप जल्दी से अगर इस तरह करते हैं तो फिर आपके पास लोग नहीं आएंगे। जल्दी नफा कमाने वाले मार्केट में से जल्दी निकल जाते हैं, या कपले करने वाले फिर ब्लैक लिस्ट में वो आ जाते हैं, उनसे कुछ सौदा नहीं होता। इसलिए तिजारत को दायमी रखने के लिए इन लोगों ने ये अखलाकियात का एक मुनज़्ज़म तरीका अपनाया है। ये इसके पीछे सिर्फ अपने कारोबार को पुख्तगी देना है। आखिरत का तस्वुर न होकर भी कोई कहे कि ये कैसे जी रहे हैं, तो इसके पीछे भी दुनियावी मनफात है, चाहे वो देर पा मनफात दूर की है। तमवील बाद शहर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग ये कह दिया जाए, यानी अभी माल तैयार नहीं हुआ है या तैयार कर दिया है, दोनों में फर्क है। माल तैयार कर दिया तो रकम ले ली है बैंक से, माल में गफला किया है, माल वापस आया, अब बैंक को पता चला कि हमने जो रकम दी वो तो गई। लेकिन बाद शहर में है, तैयार कर लिया है फिर ले रहे हैं, तो बैंक के लिए आसान है कि क्या करे, वो आपका माल जाए, वहाँ से रकम आए, अब ये इसका इंतजार करेगी। इसका वही तरीका होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग का होता है। एक्सपोर्टर माल रवाना कर चुका है, उसके पास उस माल का बिल है, इस बिल को वो बैंक के हवाले कर देता है और तैयार कर चुका है। अब उसको दूसरे माल का ऑर्डर आया, दूसरे माल के ऑर्डर के लिए माल तैयार करना है, तो बैंक के पास जाएगा, बैंक कहेगा कि हमें मुजारबा मुशारका पर रखो, माल तैयार करके बेच दिया है, उसका बिल नहीं आया है, वो बाकी है, इसलिए उसके लिए मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ। अब वो बट्टा लगाना आप सुन चुके हैं कि बिल है 1,50,000 का, और अब वो आप उसके पास से 1,40,000 ले रहे हैं कैश, और उसको जब बिल मिलेगा तो 1 लाख, ये जायज़ नहीं, इसलिए कि ये कहीं से कहाँ से बस आए उसके लिए। और बैंक उसकी पुख्तगी यानी मैच्योरिटी को सामने रखकर उसमें कटौती करके बाकी रकम ये तो मैंने एक मिसाल दी, मौलाना फरमाने के ऐसा नहीं है कि 10,000 ही का हो, जैसा जैसा मान ले जैसी जैसी सबका है, बाकी रकम एक्सपोर्टर को दे देता है और पुख्तगी की तारीख आने पर बैंक की रकम इंपोर्टर से वसूल कर लेता है। जैसा कि दिन चलता है, इसलिए आप कहोगे वो बैंक के पास से कैसे वसूल करोगे, मुझे बैंक से नहीं लेना है, मैंने उनसे सौदा किया, ऐसा नहीं होगा। सब बैंक ही से मामला होता है, इसलिए उसको लिए आसानी है, वो दे न दे, लेकिन बैंक ने ले लिया है तो अब उसको बैंक ही से मिलने वाला है। जैसा कि बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग की वजाहत हम कर चुके हैं। यहाँ पहले खस्मुल कम्बियाला यानी बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंट के शरीय हुक्म पर गुफ्तगू कर ली जाती है। डिस्काउंटिंग की फी की हैसियत ये है कि दाइन जिसके हाथ में बिल है वो देन का बत्ता लगाने वाले यानी डिस्काउंटर की तरफ हवाले कर देता है, और ये हवाला भी अनक़सिम मिनत दैन है जो नाजायज़ है, इसलिए कि आपको किसी के पास से 1.5 लाख लेने हैं, तो आपके सामने वाला मदीन, अब आप इसके हवाले कर रहे हैं बैंक के हवाले उसको कर रहे हैं, ये 1.5 लाख जो मुझे वसूल करना है मैं नहीं कर सकता, आप उसको वसूल करना, ये हवाला हुआ। लेकिन हवाले में आप 1.5 लाख को 1,40,000 में तब्दील कर रहे हैं, तो भी अनक़सी मिनत दैन है 1,50,000 और आप कर रहे हैं कम करके, अनक़स मिनत दैन ये चाहिए, हवाले में चाहिए, इसलिए कि रिबल फजल है। डिस्काउंटिंग के इस मामले को बेउद दैन नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि बे और हवाले में ये फ़र्क होता है कि बे के बाद दाइन बड़ी जिम्मा हो जाता है और देन जब किसी चीज़ कोई चीज़ बेची तो उसके बाद आप बड़ी जिम्मा हो गई। हवाले में जब तक उसने हवाला लिया है ये चीज़ मुकम्मल नहीं होती, वहाँ तक उसकी तहवील में ये चीज़ होती है, उसको उसकी जिम्मेदारी बर्दाश्त करनी पड़ती है।
बे में तो आपने माल जो बेचा है और जिस जिस तरीके का है उन तमाम शर्तों के साथ है, आपने चीज बेची वो रास्ते में जा रही है, बिन एक्सीडेंट हो गया, अब कहे कि लाओ हमारा पैसा पाछा, आप करेंगे? आप कहेंगे माल बेच दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। तो बे में ये है, लेकिन हवाला लिया है तो जब तक अदा नहीं होगी तहवील, हवाला तहवील वगैरह ये मसला है ही ऐसा, इसलिए एकदम जल्दी से किसी के हवाले लेने के, लेकिन ले रहे हैं हम लोग, दे रहे हैं, ये तो नहीं है जो लोग क्रेडिट कार्ड से मामला करते हैं तो क्या हो रहा है, क्रेडिट कार्ड में आप क्रेडिट का ये कार्ड किसी कंपनी का है, आप दुकान में जा रहे हैं मॉल में और मॉल वाला उसको लेकर उसमें से जितना माल है वो सब आपको अदा, ये हवाला है। कंपनी ने ये जो कार्ड है उसकी शक्ल में उसको ताजिर को कहा कि तुम घबराओ मत, ये जितना माल खरीदेगा इतने माल की अदायगी अभी तो हम कर रहे हैं, आपको ये चीज मिल जाएगी, या आप अभी उधार रखो, हम आपको महीना पूरे होने पर दे देंगे, इस तरीके के मामला। और देन के तमाम हुकूक इस शख्स की तरफ राजे हो जाते हैं जिससे देन को खरीदना होता है, और हवाले में मुहिल ही दाइन रहता है, वो बड़ी जिम्मा नहीं होता। आप जानते हैं वो नहीं लिया तो इमाम साहब और साहिबों के दरमियान जो इख्तिलाफ रहा, इमाम साहब ने पढ़ना कि ये बरी होने वाला नहीं है, सामने वाला आपने किसी ने हवाला लिया, कफाले ने हवाला जो फर्क किया वही है कि हवाला किसी ने लिया तो एक आदमी दूसरे को मार रहा था, एक आदमी ने कहा कि क्यों मार रहे हो, पैसे नहीं दे रहा है, तो जवाब जो आप ही हो गया, अब वो नहीं दे रहा है, आपको देने पड़ेगा, लेकिन अब अगर आप भी नहीं ले रहे हैं तो फिर जाएगा किसकी तरफ, असल की तरफ भी वापस जाएगा। किताब में पढ़ चुके हैं, कफाले में तो सिर्फ पहुंचाने की जिम्मेदारी है कि वो हाजिर कर दे, आते हैं छोटे अठवाडिये वगैरह वाले, फिर आइंदा हफ्ते में अब वो मांग रहा है तो ठीक है, अब हफ्ते के बाद वो नहीं आया तो फिर साहब की कफालत पूरी करनी पड़ेगी। अगर मोहताल को देन न मिले तो वो मुहिल की तरफ रुजू का हकदार होता है, वापस रहेगा कि तो देता नहीं, मैं तो तने बेच चुका, मैंने तुझे कर्ज दिया है, तेरा कर्जा लाओ। और आजकल डिस्काउंटिंग में सूरत हाल यही होती है कि अगर बट्टा लगाने वाले यानी डिस्काउंटर को बिल वसूल न हो तो वो असल दाइन से रुजू करता है, लिहाजा ये बैउद्दैन मिन गैरि मन अलैहि दाइन। अगर इत्तेफाक से बैंक ने नहीं दिया जाएगा किसके पास, असल के पास, लाओ हमारे पैसे बैंक के वास्ते से तुमने दिए थे लेकिन बैंक तो नहीं दे रहा, या बैंक ने ताकीद की, या बैंक का उसके कोई गबला हो, उसने बैंक के साथ कुछ किया हो तो बैंक की ब्लैक लिस्ट में वो है, और अब आपने उसके नाम पर रकम की लेकिन रकम उस तक नहीं पहुंच रही है, तो बैंक भी उसके साथ मामला कर रही है। मतलब कोई ऐसी वजह हो सकती है जिसकी बुनियाद पर अगर कोई परेशानी आई तो ये परेशानी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। आपने तो 1,40,000 में 1,50,000 का कर्जा बेच दिया है, अब उसके बाद ये जो मसला पेश आया इसका कौन जिम्मेदार, इसलिए तो हवाला किया है, आपने चीज बेची हो 1.5 लाख में और फिर 1,40,000 लेने पर आप राजी हो, वो एक अलग चीज है, या किसी और को 1,40,000 में बेच दी वो चीज, वो अलग है। और यहाँ तो आपने हवाला लिया है बैंक ने कि तुम्हें लेना है उसके पास से 1,50, लेकिन हम तुम्हें 1,40 दे रहे हैं और हम उसके पास से 1,50 वसूल कर लेंगे। लिहाजा ये बैउद्दैन मिन गैरि मन अलैहि दाइन नहीं बल्कि हवालतुद्दैन बिअनक़सिम मिन अद्दैन। ये हवाला है, आप एक से दूसरे की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं, दोनों की मसाइल अलग अलग है। इसी को इनामुल बारी में मौलाना ने जहाँ शरीफ में किताब दी है वहाँ बहुत सारी मिसालों के साथ इस मसले को 2-3 जगह पर जिक्र किया है। उसकी मुताबदल सूरत के लिए शुरू में अहकार ने तजवीज़ पेश की थी कि यहाँ दो मामले अलग अलग किए जाए, एक ये कि बिल में कटौती करने के बाद जितनी रकम बाकी बचती है उतनी रकम का कर्ज ले लिया जाए, दूसरा मामला है कि उसको देन वसूल करने का वकील बना दी और उस वकालत पर उजरत तय कर दी। अब बैंक के बहसियत वकील देन वसूल करके उसमें से अपनी उजरत वसूल कर ले और बाकी से देन का मुकासा कर ले। मसलन 100 रुपये का बिल हो तो बैंक 90 रुपये कर्ज दे दे और बैंक को बिल वसूल करने का वकील बना दिया जाए जिसकी उजरत 10 रुपये होगी। अब बैंक इस तरह कर लिया 90 तो ये और 10 रुपये किसके, यानी कि जो 140 तो इसके 1,40,000 और 10,000 वसूल करने की बैंक की जिम्मेदारी। अब बैंक तारीख आने पर 100 रुपये वसूल करके उसमें से 10 रुपये अपनी उजरत रख ले और 90 रुपये से अपने देन का मुकासा कर ले। लेकिन इस तजवीज़ में दो बातें काबिल गौर है, एक ये उमूमन वकालत की उजरत को बिल की रकम की तादाद के साथ मरबूत किया जाएगा, बिल की रकम ज्यादा हो तो उजरत भी ज्यादा होगी और रकम कम हो तो उजरत भी कम होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ भी चलता है, तलाक बन गए लोग तो 1 करोड़ की, अब तो ये भी सब खत्म हुआ है क्योंकि मार्केट ही नहीं, लेकिन आज से 8-10 साल पहले जब मार्केट तेजी पर थी तो 1 करोड़ रुपये तक का कोई मकान या कोई जमीन खरीदनी बेचनी हो तो उसमें 20 में जो दलाल होता था वो उसके फीसद मुतय्यन होते थे, 2%। अब कभी कभार तो जितने होशियार होते थे कि खरीदने वाले से भी 2% और बेचने वाले से भी, लेकिन इतने से बहुत आज दुनिया बहुत होशियार हो चुकी है, खरीदने वाले बेचने वाले 1-1% तय कर लेते हैं।
1% मैं दूंगा और 1% तो तुम देना, ताकि दोनों में कमी हो, या कभी कभार एक तरफ से ही हो कि मैं तो नहीं दूंगा। मैं मकान खरीदता हूँ, तुम कभी दलाल बन के आए हो, इसलिए कि दलाल तो असल उसका होता है, उसको बेचना है, अब आपको खरीदना है। अब वो आपको जबरदस्ती कर रहा है कि ये फायदे हैं, वो फायदे हैं। अजीब लोग होते हैं। मैंने एक ही मजलिस में इनको देखा, बेचते वक्त बात अलग और खरीदते वक्त, यानी दोनों नजरिए उनको मालूम है कि बेचने की क्या फवाइद है और खरीदने के या एक ही मकान के सिलसिले। तो ये इस तरह, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो फिर 1% होता है, 2% भी नहीं मिलते हैं, 1% ही। कभी रकम अंदाजन होती है कि इतने रुपये तुमको देंगे, हमारी ये जमीन का सौदा तुम करा दो। अब ये सिमसार और ये जो दलाल होता है, ये जमीन बड़ी होती है तो बड़ी रकम की मांग करता है, और छोटी जमीन होती है, कम पैसे वाली होती है तो अमूमन पैसे, या कभी छोटी है लेकिन मौके की और नजाकत वाली है, तो ऐसे मौके पर वो फायदा उठा रहा है कि आने दुनिया से बनने देगी तो मैं अपना पूरा कर लूँ, या इसको बेचना ही है, बेचने की मजबूरी है किसी की, तो उससे फायदा उठा के दलाली कभी दे दे। खैर ये तो जिंदगी मसला। असल ये है कि बैंक के साथ जो आपका मामला है, लंबी रकम है, तो लंबी रकम के मामले में बैंक आपको जब बड़ी रकम दे रहा है तो यकीनन वो अपना खर्चा भी कितना करे। ये तो मैंने आपको 1 लाख 1.5 लाख की मिसाल दी थी, अब इसी की बजाय 1.5 करोड़ हो तो 10,000 थोड़ी लेगी बैंक, इस मौके पर ज्यादा लेगी हो। तो इस तरीके से इनकी कमी ज्यादा होने से भी इस तरह का मसला बनता है। उन्होंने उसको पढ़ना है कि ये गुजरत का मसला हो, सिमसार का, दलाली का। तो आया दलाली में दोनों तरफ से या एक तरफ से अगर दोनों तरफ मेहनत की है, दोनों को तैयार करने के लिए खरीदने वाला नहीं मांग रहा है तो बेचने वाला कभी नहीं मांग रहा है, आप दोनों के लिए माहौल बना रहे हैं, मेहनत करते हैं, रिक्शा में जाकर खर्चा करते हैं। एक साहब है पूरे साल घूमते ही रहते हैं, तो मुझे कहना है कि हमारा खजाना पैसा चाहिए, इसलिए कि कोई खरीदने वाला नहीं, कोई बेचने वाला नहीं। इन्होंने मेहनत की, पूरी तैयारी में अचानक पूरी गारंटी सौदा कैंसिल कर दिया, तो वो तो बेचारा वहाँ का वहाँ रहा, उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती। खैर वो ये कह रहे थे कि मुलाजमत पैसा को तो मुलाजमत का मिलता है, उनको तो कांटे घिसने के पैसे इंतकाल हो गया है, लेकिन बात बहुत अच्छी करते थे, सही बात करते थे। दूसरी बात ये मजाक मौलवियों को कह रहे थे, यहाँ पे रहते थे તમારા લોકોનો પગાર નક્કી હોય તો તમારી તો દરનો અમુક हमारा 1 महीनाનો 1 વર્ષનો પગાર તમારો 1 મહિનાનો થઈ જશે, ऐसा भी तो होता है, ये भी तो तुम्हारे खरीदे हैं। दूसरी बात यह कि उजरत को मुद्दत के साथ भी मरबूत किया जाएगा। बिल की पुख्तगी ज्यादा मुद्दत के बाद होनी हो तो उजरत ज्यादा होगी, और पुख्तगी कम मुद्दत में होनी हो। लंबी मुद्दत के लिए आप उजरत के साथ मामला कर रहे हैं तो लंबी दलाली लेते हैं, कम है तो अब ये मसलन 10 साल के बाद ये रकम दूंगा, इस तरह का, या वो कर्जा जो है वो कर्जा खुद 10 साल का किसी ने आपसे लिया है, उसने आपको 10 साल तक लंबी मुद्दत 2-4 साल के लिए उसने कहा हो कि ये आपसे माल खरीदते हैं और 2 साल के बाद अदा करेंगे। अब बैंक ने तो रकम दे दी, अब बैंक को मिलने वाली है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो यकीनी बात है कि 1 महीने में मिलने वाली हो, 2 महीने में, तो बैंक उसके लिए कम उजरत रखेगी और ज्यादा होगी तो ज्यादा रखेगी। अब यहाँ ये बात काबिल गौर है कि उजरत को रकम की तादाद और मुद्दती पुख्तगी के साथ मरबूत करना दुरुस्त है या नहीं। उजरत को रकम की तादाद के साथ मरबूत करने का जो जवाज मालूम होता है, उसकी वजह है कि दल्लाल यानी सिमसारा की उजरत को मालियत के साथ वाबस्ता कर समसरा की उजरत को मालियत के साथ वाबस्ता करने में इख्तिलाफ है, लेकिन अल्लामा शामी ने जवाज को तरजीह दी है। यानी दल्लाल ने ज्यादा मालियत की चीज बेची है तो ज्यादा उजरत लेना, और कम मालियत की चीज में दल्लाल बना है तो कम उजरत लेना जायज है। उसकी वजह जो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है उसका हासिल है कि गो यहाँ मालियत कम या ज्यादा होने की सूरत में दल्लाल की मेहनत और अमल बराबर है, मगर उजरत मुकर्रर करते हुए सिर्फ अमल और मेहनत को नहीं देखा जाता, बल्कि उजरत मुकर्रर होने में अमल की कदर और नौयत का भी दखल होता है। कम मालियत की चीज भी की दल्लाली की कदर कम है और ज्यादा मालियत की चीज की कदर ज्यादा है, लिहाजा उसके बिना पर उजरत में भी कमी बेशी हो सकती है। लेकिन बेचने वाले की बड़ी मजबूरी है तो कम मिकदार की है, तब भी वो सामने वाले को कह देता है कि चल तो और ले लीजिए, उसको कुछ मिलने की उम्मीद न हो, किसी जगह पर का कोई खरीदार मिल रहा है, इसी तरीके से एक मौके की जगह है आदमी को खरीदनी है, और अब वो ऐसी है कि सामने वाला इतने में नहीं दे रहा है, तो अब ये दलाल की ज्यादा दे रहा है दलाल को, तो किसी तरीके से इसको जीप डाल दो तुम्हारा और उसको शीशे में कहीं भी ले आओ, इस तरीके से ये कभी कभार होता है। इसलिए इससे मालूम यह होता है कि सिमसार कभी या कभी किसी इलाके में दलाली ज्यादा होती है, किसी इलाके में दलाली कम मिलती है। ये भी क्यों होती है? जो जमीनें कसरत से बिकती होगी या जो जमीनें मौके की होगी उनके लिए दलाली भी जल्दी मिलती,
اور جو زمینیں اس طرح کی نہیں ہے تو دلال پھانپے مارے دیہاتوں کے اندر وہ جائے اور ایسی جگہ مال بکتا ہی نہ ہو تو وہاں پر جتنے ہی دھندے تھے وہ مارتا رہے گا پھر بھی ملے گا. تو ایسے موقع پر وہ کم قیمت میں بھی راضی ہو جاتا ہے. 1 ٹکا نہیں آدھے ٹکے میں بھی یا 10,000 15,000 کا لفظ بول کر کے کسی طرح چھوٹ جائے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو چیز ہے اجرت لینا دلالی کی یہ موقع اور محل کے اعتبار سے صرف کمیت اور کیفیت کے اوپر اس کا صرف کمیت پر اس کا تعلق نہیں ہے کبھی کبھار کیفیت پر بھی ہوتا ہے. اس پر قیاس کرتے ہوئے وکالت کی اجرت کو مقدار رقم کے ساتھ وابستہ کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. بہت دور دور کے مولانا نے بتلایا تو ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سب سمجھ رہے ہیں ڈنگرے مارنا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جائز کرنے کی شکل کرنے کے لیے بتلایا ہے کیونکہ اب جتنی شرطیں ہوں گی اتنی شرطوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے اور عام متن تاجر لوگ یا اس طریقے کے معاملات کرنے والے تمام کی رعایت نہیں کرتے. اس لیے حضرت مولانا نے ایک کو دوسرے پر دوسرے کو تیسرے پر معلق کرتے ہوئے فتویٰ تو دیا لیکن پھر ان تمام کی رعایت کرنا عام متن تاجروں سے ممکن نہیں ہوتا. اس لیے مولانا نے خود بھی بعد میں فرمایا رجوع کر لیا. مگر اجرت کو مدت اور زمانے کے ساتھ مربوط کرنے کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ یہ آئینہ والی شکل ہے کہ بلا سود قرض دے کر قرض کی مدت کے حساب سے وکالت کی اجرت وصول کر لی گئی یا جو سود قرض پر نہیں لیا جا سکا وہ وکالت کی اجرت بڑھا کر وصول کر لیا گیا. اس لیے تجویز پسندیدہ نہیں. اسی لیے بیع اینا میں یہی ہوتا ہے ایک آدمی کو رقم کی ضرورت ہے اور وہ بینک کے پاس ہوگا اسلامی بینک ہے تو سود تو ملے گا اسی کو بیع التورق بھی کہا جاتا ہے. اینا پہلی مثال ہے پورا تورق پر ہمارا مقالہ بھی ہے اور پھر اس کے بعد والی شکل تورق یہ حنابلہ کے یہاں اثر یہ مسئلہ ہے. عرب ملکوں میں یہ چلتا ہے بیع التورق. ہندوستان میں تو تورق کا کوئی ورق اس کا ڈال ہی دیا ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے کیونکہ کاغذات سے وہ معاملہ ہوتا ہے اس لیے اس کا نام تورق رکھا گیا ہے. تو بیع اینا کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ اسلامی بینک کے پاس گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے قرضہ لینا ہے. اب اسلامی بینک تو سود پر قرضہ دے گی نہیں تو اب وہ کیا کہے گی سود لینے کے کوئی طریقہ نکالنے کے لیے یہ ہمارے پاس موبائل ہے 5,000 کا ہو کہے گی یہ 6,000 میں خرید لو تو ہم تمہیں 1,00,000 روپیہ بطور قرض کے دیں گے. یہ بیچارہ 1,00,000 ملنے کی لالچ میں کیا کر رہا ہے 5,000 کے موبائل کو 6,000 میں. اب مارکیٹ میں جائے گا تو پاس میں نہیں لیکن وہ مارکیٹ میں جائے گا بینک کو کیا فائدہ ہو. بینک کو تو وہی بینک کہے گا ان کا دوسرا آدمی ہو وہی اس کو خرید بھی لے گا. یہ تو مثال دی ہے موبائل کی. رات دن ضروریات زندگی کی بھی اس قسم کی چیزوں کے لیے اسلامی بینک ہم تم کو قرضہ تو دے رہے ہیں لیکن یہ ہماری چیز تم خریدو اور یہ چیز خریدو اس میں ہی وہ 1,000 وصول کر لیا کہ آپ نے خریدا 6,000 میں. اب آپ جب بیچنے جائیں گے تو بینک کو تو آپ نے 6 دے دیے. اب آپ بیچنے گئے تو آپ کو لیکن بینک کو کیا ملا اگر وہی آدمی بینک کا ہے خریدنے والا 5 میں یا بینک خود خرید لے یا بینک کا آدمی خریدے ورنہ بینک نے آپ کو ایک چیز 5,000 کی 6 میں لے لی بینک نے آپ 6,000 کی 5 میں آپ کو بیچ دی اور 1,000 زیادہ لیا. یہ آپ کب کریں گے جب بینک آپ کو قرضہ دے گی. تو ادھر سود 1,000 ہوتا اس کے بجائے کیا ہو گیا بیچنے کے اندر قیمت کم زیادہ کرواؤں. یہ بیع اینا کی شکلیں بنتی ہے اس طرح. یہ شرعی اعتبار سے بیع الوفا میں بھی تھوڑا بہت اس سے ملتا جلتا ہے. ایک جگہ آپ مکان ہے آپ خرید رہے ہیں سامنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ مکان میں تمہیں بیچ رہا ہوں 5 سال کے لیے 5 سال کے بعد جو رقم میں نے تم سے ابھی لی ہے وہ رقم میں تمہیں ادا کر دوں گا یا کم بیش ہو آپس میں جو معاملہ ہو تو پھر اس کے بعد یہ مکان خریدو تمہیں میرے علاوہ کسی اور کو بیچنا نہیں ہے. اس طرح کے معاملات ہو گئے مصر میں ابن حمام نے اور اس طرح کے حضرات نے اس کے اندر کچھ گنجائش نہیں دی اور کچھ مثالوں کے اندر گنجائش نہیں دی جہاں سود والا معاملہ نظر آیا ہوا. لہذا جب تک تمل بعد شان کی کوئی بے غبار شرعی صورت سامنے نہ آئے اس وقت تک اس قسم کی تمل بند ہی رکھنی ہوگی اور تمام معاملات تمویل قبل الشحن یعنی پری شپمنٹ فائنینسنگ ہی کی بنیاد پر کیے جائیں گے. اور اگر ایکسپورٹ کی قیمت حاصل ہونے سے پہلے ایکسپورٹر کو وہی مطلب یہ ہے کہ مضاربہ مشارکہ کے عنوان پر ہی بینک ان کے ساتھ معاملہ کر سکتی ہے. بہتر اور بے غبار شکل ہوئی ہے اس میں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں آ رہی. بینک اس کو پیسے دے رہی ہے اور بینک اس کے ساتھ مضاربہ کر رہی ہے. اب جب مال تیار ہوگا تو بینک کو معلوم ہے کہ کتنا نفع لیا ہے. مال تیار کرنے کی بل تو بینک دے گی. جب آپ مضاربہ مشارکہ کسی سے کر رہے ہیں تو آپ بل مانگتے ہیں کہ یہ مال کتنے میں آیا تو مال ہمیں کتنے میں پڑا سارا ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ اور اب اس کے اوپر کتنا نفع جتنا نفع ہوگا اس کا پیسہ کتنا بینک کا اور اتنا. اس لیے یہ بے غبار ہے. اس سے بہتر اور کوئی شکل نہیں ہے. اعادۃ تمویل الصادرات کا حکم. درآمد برآمد میں بینک کا کردار بیان کرتے ہوئے بات بتائی جا چکی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لیے دوسرا مسئلہ نیچے مولانا نے
अगर वो सोहना दे, और अगर वो बाद में यानी इसने तो माल तैयार कर लिया, अब वो बैंक के पास गया है तो माल तैयार किया है, बैंक से वो रकम मांग रहा है, तो वो पहले इस मामले को बैंक के साथ पहले से ही मुजारबा जब माल तैयार हो जाए उसके बाद वो बैंक से कहे कि ये माल मेरे पास है, लेकिन मुझे सामने वाले से रकम मिलने की अभी, तो आप मेरे साथ कुछ शरीक हो जाओ। वो कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ इतने रुपये दे रहा हूँ तुमको और तुम्हारे साथ शरीक हुआ, यानी सामने वाले को बेच दें। लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ बसों से खतरे बाकी रहते हैं, इसलिए कि माल इसने तैयार किया और अब ये दोनों के दरमियान मुजारबा मुशारका हुआ कि कोई याद कर दो, सिर्फ पैसे दे रहा है। लेकिन लोग ऐसा भी चलाते हैं, इस्लामी बैंकों में भी चलाते हैं रोजमर्रा हमारे यहाँ, लेकिन ये जायज़ नहीं है। एक स्कीम जारी की है जिसको एक्सपोर्ट रिफाइनेंसिंग स्कीम या तमिल सौदीरात कहते हैं। इस स्कीम की 2 तरीकों की वजाहत भी वहाँ हो चुकी है, यहाँ इनके शरई हुक्म पर गुफ्तगू पेश नज़र है। इस स्कीम का पहला तरीका ये था कि स्टेट बैंक तिजारती बैंकों को कर्ज देता था और इस पर 5% सूद लेता था। इसके सूद होने में तामुल की भी जरूरत नहीं, लेकिन ये तरीका खत्म करके जो नया तरीका इख्तियार किया गया उसमें स्टेट बैंक तिजारती बैंक को बाकायदा कर्ज नहीं देता, बल्कि उसके नाम अकाउंट खोल देता है जिसमें से तिजारती बैंक को रकम लेने का हक नहीं होता। यह हकीकत में कर्ज का मामला नहीं बल्कि महज एक कागजी कार्रवाई यानी हज़ल है। इस पर स्टेट बैंक ट्रेजरी बिल के हिसाब से जो रकम तिजारती बैंक को देता है उस पर भी इश्काल नहीं, इसलिए कि वो स्टेट बैंक की तरफ से एक्सपर्ट की हौसला अफजाई के लिए इब्तिदान इनाम की हैसियत में है, किसी मामले के नतीजे में नहीं। अलबत्ता स्टेट बैंक तिजारती बैंक से 5% लेकर यह नफा देता है जो अमूमन 13 या 14% होता है। इसमें रिबल फजल का शुबा है, लिहाजा अगर स्टेट बैंक 5% तिजारती बैंक से लेना छोड़ दे, उसकी बजाय वो उसकी नफा की मिकदार कम कर दी जो वो खुद दे रहा है, मसलन 13% की बजाय 8% कर दे, तो उसकी गुंजाइश मालूम होती है। और सबसे बेगुबार तरीका यह है कि चूंकि स्टेट बैंक का असल मकसद बरामदाद की हौसला अफजाई के लिए बैंक को इमदाद यानी सब्सिडी देना है ताकि वो कम नफा रखकर बड़ आमदाद की तमील करे, लिहाजा इसके लिए वो बराह रास्त इमदाद दे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरीके से दुनिया भर की जहाँ जहाँ भी सेंट्रल बैंकें हैं उनके आपस के कुछ कवायद होते हैं अपनी बैंकों के साथ, उसमें उमूमी तौर पर वो बैंक को ज़्यादा शरह के साथ सूद देते हैं या कम शरह के साथ इस तरह के मामला करते हैं। कभी ये कहते हैं कि तुम ये चीज़ कर लो, इस पर फिर हम तुम्हें इतना कम करेंगे। मौलाना ये फरमाते हैं कि आपस में मामला करें और कारोबारी मामला नहीं हो रहा है, व्यय नहीं बन रही है, इजारा नहीं बन रहा है, बुरा बहा नहीं बन रहा है, बल्कि इसके बजाय वो पैसों का एक तरफ से आना और दूसरी तरफ से जाना। अब एक तरफ से कम पैसे, दूसरी तरफ से ज्यादा, सूद हुआ। इसलिए कि मसलन यहाँ तो हो रहा है, चीज का जब रुपये से तबादला होता है दोनों की जिन्स अलग अलग होती है, कमोबेश आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन जब पैसे का पैसे ही से मामला, जैसे रिजर्व बैंक का और हमारी जो दूसरी बैंक है आपस में जो मामला होते हैं, तो इस्लामी बैंक अगर है तो वहाँ मौलाना ये फरमा रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे वहाँ का सेंट्रल बैंक, उसको पूरा पावर है, वो यही कर सकता है कि सब्सिडी तो देते ही हैं। हुकूमत जैसे आप ही किसी काम के लिए गए, हुकूमत क्या करेगी कि भाई आपको जहाँ सब्सिडियाँ जिन चीज़ों पर मिलती है, मसलन भैंस खरीदने गए, अब आपसे जो सब्सिडी वाला तरीका है हुकूमत का वो ये है कि आप किसी ताजिर से आपने खरीदा या बैंक ही की मारिफत से चीज़ें आप खरीद रहे हैं, तो बैंक आपको ये करेगी कि आपको इसकी कीमत मुतय्यन करेगी कि गाड़ी मसलन आपको लेनी है तो इतने रुपये में ये गाड़ी आपको बेच रही है और इतना उस पर सूद है, साथ में ये भी सूद के बगैर तो कोई चीज़ वहाँ चलती नहीं। लेकिन हुकूमत की स्कीम यह है कि इस पर सब्सिडी देंगे आप, यानी इतनी चीज़ आप खरीदते हैं, चीज़ मसलन 5 लाख की है, हुकूमत आपको कहेगी कि हम 4.5 लाख में आपको दे रहे हैं, तो 50,000 कम, यानी ये नहीं कहेंगे सीधे, ये कहेंगे कि इसकी कीमत 5 लाख है और उस पर आपसे सूद वसूल करेंगे, इतने हफ्ते अदा करेंगे तो 50,000 रुपये इस पर सूद है मसलन मिसाल के तौर पर, तो आपको कितने देने पड़े? 5.5। अब वो कहेगी कि हम 50,000 सब्सिडी दे रहे हैं, तो कितने में पड़ी? 5 ही में पड़ी। ये फायदा हुआ। ये इस तरह की शक्लें बदल कर तुम ये कर रहे हो सब्सिडियाँ देकर, तो सीधी हुकूमत माफ़ कर दे। लेकिन खैर मौलाना ने फरमाया, मौलाना मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये कि हुकूमतें जो सब्सिडियाँ देती है अगर वो इस तरह की सब्सिडी न दे और सीधी ही माफ़ कर दे तो लोग खाली कागजात बनाएंगे न, पैसे कम ज़्यादा करके इसमें से चीज़ वसूल कर लेंगे। इसलिए हुकूमत जो गाड़ी आपको पहले ही बैंक 5 लाख में दे सकती है वो 5.5 लाख में देकर 50,000 सूद लेती है, या दूसरी तरफ 50,000 रुपये आपको माफ़ कर देती है। ये क्यों करती है? हुकूमत का ये इस तरह का करना उन
इलाकों में होता है या उन चीज़ों में होता है जहाँ लोग गुर्बत वाले होते हैं, जिन इलाकों के अंदर लोगों की माली हालत इस तरह की नहीं होती, या जिन शोबों में ये होता है, उन शोबों के अंदर जहाँ कमजोरी होती है, अचानक आ गई मंदी, तो हुकूमत इस तरीके की लोन की स्कीम और सब्सिडी की स्कीम करके लोगों को फायदा देना पड़ता है। अगर वो पूरा दे दे माले गनीमत, तो लोग उसको ले लेंगे पैसों ही को और कोई काम नहीं करेंगे। ये तो चीज़ ली तो उसको कारोबार में लगा रहा है, तो अब कल ये सब्सिडी लेने वाला नहीं बनेगा, बल्कि अब ये आगे बढ़ेगा, उसकी माली पोजीशन बढ़ेगी, तो लोग गुर्बत के उसी दायरे में रहे, हुकूमत नहीं चाहे, लेकिन हदिये में देती रहे तो लोग इसके गलत कागजात बनाकर गाड़ी टैक्सी ले भी न हो, खाली खाली कागज बनाए गाड़ी खरीदने में 50,000 रुपया लोन सब्सिडी इसके ऊपर मिल जाए, ये इस तरह के कागजात सारा चलता है। बैंक के मैनेजर से मिल जाओ तो आप और वो खाते ही रहो, पीते ही रहो।